everyone, welcome to K Watches Dramas. I am going to be showing you guys my Eat Sephora haul. So we're going to unpack those packages and we're also going to be talking about Muamma episode number, I don't know, the Wednesday, Thursday episodes. So yeah, let's get on to it. Just give me 1 second here. One. This is a heavy one too. So I'm going to be showing you all the products. अगर आप लोग मुझसे पूछोगे prices, तो prices मुझे नहीं याद. I'm going to be very honest. So just log into your Sephora app on your phones and just आप prices वहाँ से देख लेना. अगर आप shades पूछोगे, तो honestly हर product में I am light or fair light. So that's going to be my shade. Although of course हर कोई अपने उसके हिसाब से use करता है ना, skin tone के हिसाब से. So अभी मुझे पता नहीं है कि मेरे पास लगा के दिखाने का टाइम होगा कि नहीं, because I have to run somewhere. So इसमें मेरे पास है the Lancome Paris All Over Concealer. This is what it looks like. Amazing. खोल के दिखाऊं. साथ में साथ हम मुआम्मा के बाद. Okay, so this is what it looks like. The Lancome Paris All Over Concealer. I think it is going to be my shade. मैं कभी भी मेरी ख़राब आदत है कि मैं shade match नहीं करती. I just know my shade. So anyways, this is the NARS Radiant Creamy Concealer. And this is what it looks like. By the way, none of this is sponsored, of course. So this is what it looks like. Okay. All right. So I'll probably use one of these today. एंड इसमें क्या है बॉक्स में साथ हम उसकी भी बात करते हैं ना. मुआम्मा की एपिसोड मज़े का था. द थर्सडे एपिसोड बहुत मज़े का था. हुआ क्या न जाना ये दिल क्यों दीवाना हो गया है जी को प्यार सजना. तो प्यार हो गया उनको फिर से. अच्छा, ये बहुत ही एक, मुझे नहीं पता आप लोग को लेम लगा होगा कि नहीं लगा होगा, लेकिन एक बहुत ही फनी चीज़ ये हुई कि पहले तो उन्होंने कह दिया ना अपने स्टेट एजेंट द रियल्टर से कि नहीं मुझे टेनेंट नहीं चाहिए, मुझे रेंट पे नहीं देना. और फिर ये बेचारा कपल आया और इसको भी जीजी ने कहा कि जाए, बोल दिया ना नहीं देना, एक बार बात नहीं समझ आ रही, जाए यहाँ से. तो ये सब तमाशा हुआ. उसके बाद उस लड़की ने सिर्फ इतना कहा, शाहजहां चले हम कहीं. क्या कहा? शाहजहां? मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी. शाहजहां? हाँ, देख ले घर देख ले. मतलब ऐसे तो करोड़ों लोग होंगे शाहजहां नाम के पाकिस्तान में, तो आप क्या हर शाहजहां को अपना घर दे देंगी? हाँ जी, तो क्या हरकत है. अच्छा, तो फिर मैंने एक और, अच्छा ये है Lancome Hypnose Drama. It is the waterproof version. I only like the waterproof version. It is an excessive black. मैं 90% black ही mascaras use करती हूँ. Very random, seldom मैं use करती हूँ brown or those guys. So yeah, this is, I've used tons and tons of these, and yeah, it's a great mascara. So हो गया है जी को प्यार सजना. अच्छा, so this is the Makeup Forever Skin HD Skin Smooth and Blur Undetectable Concealer. This is what it looks like. देखें चले तो फिर वो अंदर जाते हैं और वो देख लेते हैं अपना घर. This is what it looks like. I loved Makeup Forever concealers. Like Makeup Forever is my top. I would say like my top favorite brand. कुछ आप अगर देखोगे कि कहोगे कि आपको कंसीलर्स बहुत पसंद है. हाँ, मुझे कंसीलर्स बहुत पसंद है. एक और मैंने मेकअप फॉरएवर का मंगवाया है. दिस इज द 36 hour full coverage multi-use concealer. So that one was the undeductible concealer. This is what is this? HD Skin Full Cover Concealer. तो खैर वो लोग घर वर देखने जाते हैं और बहुत ही रोमांटिक कपल होते हैं ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं. they're being like very sweet with each other. This is what it looks like. This is the Makeup Forever HD, and this is the Makeup Forever what is this? Smooth and Undetectable, and this is the full cover. So we'll see. Okay, then we have the Makeup Forever HD Skin Undetectable Stay True Foundation. So I think कि इसका वो होगा ना, भाई या बड़ा भाई या बड़ी बहन, because concealers के साथ आपको पता है फाउंडेशन उसी लाइन की फाउंडेशन भी होती है. So this is what it looks like.
I am in what shade? आपको पता है, I'm in light. Yeah, I'm in light. And everything that I order, everything is in light. So this is what it looks like, the HD concealer. Sorry, this is the foundation, the matching foundation. And then is this another foundation? This is the Fenty Beauty by Rihanna. This is called the Soft Matte Long Wear Foundation. This is probably what I'm going to wear today. अच्छा तो देख लें अच्छा वो बहुत ही क्यूट कपल होता है ना, देर टची फीली विद ईच अदर और ये वो और जीजी को तो आपको पता है तन बदन में आग लग जाती है, ऐसे हैप्पी कपल्स को तो वो नहीं बर्दाश्त नहीं होता उनसे, तो उन्होंने घर में दिखाया और फिर वही कि अच्छा ठीक है ये कमरा, तो वो कहती हैं कि नहीं कमरा तो लॉक्ड है, कमरा तो मैं किसी आपसे पहले भी किसी को नहीं दिया था, आपके बाद भी किसी को नहीं दूंगी। तो वो कहता है कि ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, आप ये मेरा कार्ड है, आप मेरा वो करवा लीजिएगा रेफरेंस चेक, वो तो मैं करवाऊंगी चाहे आप कहें चाहे आप ना कहें। तो जीजी फुल एटीट्यूड उसको दिखा रही थी, वो जो न्यू वाला शाहजहां है, बिकॉज आई बिलीव ओल्ड वाला शाहजहां का अब टाटा बाय बाय हो गया, क्योंकि हमें दिखा दिया कि ओल्ड वाला शाहजहां बेसिकली वॉज ऑलरेडी मैरिड टू जीजी और उस बंदे ने इनको डिवोर्स दे दी, खड़े खड़े डिवोर्स दे दी, बिकॉज उसको लगा कि उसका अफेयर जो है वो उसके साथ था, सरमत के साथ, जो अब जेल में सड़ रहा है। ये मुझसे खुल नहीं रहा है, खुल गया। तो खैर जीजी उसको अच्छा फिर क्या होता है कि जीजी अपने रियल्टर को बोल देती हैं कि हेलो, उनको कह दो कि आ जाएं, और 4 महीने का एडवांस और ये और सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड दिस एंड दैट एंड दिस व्हाट इट लुक्स लाइक। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैकेजिंग, beautiful glass bottle packaging. Love it, love it. What else did I order? I ordered the Glow Sculpt multi-use cream highlighting blush. This is by Say. This is a very favorite brand of mine. I already use the highlighter from these guys, and I've repurchased that highlighter at least a million times. Anyways, so उनको फिर वो accept कर लेती हैं tenants. क्योंकि अब ये नया टारगेट है इनका, क्योंकि अब तो जीजी मतलब आपको क्या पता नहीं, अब अभी तक तो टाइट कपड़े वो पहन रही थी, लेकिन अब पता नहीं अब नेक्स्ट उनका क्या होने वाला है, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। ये खुल नहीं रहा मुझसे यार, आई जस्ट so hard to open these packagings. I can't open it, sorry, but this is what it looks like. Okay, now this is the Inky List, the hyaluronic acid serum. So this is what I'm going to use after I wash my face. And this is I like it. I like these a lot. I have like millions and millions of these. This is the Lancome Juicy Retreat 20% choline 3D Juicy Shine Oil and Gloss up to 24-hour hydration. This is the Lancome, by the way. The Lancome, which you need, Lancome Juicy Lips. That's what this is, the Lancome Juicy Lips. खुल जाओ. Okay. So, अब तो केक बनेंगे, अब मिठाइयाँ बनेंगी, और अब तो पता नहीं अभी तक जो टाइट कपड़े थे वो और टाइट हो जाएंगे. तो this is what it looks like. Very beautiful. I love this color. It's a rosy pink, tea pink, a hint of brownish in it kind of color. Love that. And the last but not the least is the Huda Beauty blush filter peach sorbet. So I already have the Huda Beauty this one. I already, not this in this shade of course, but I already have this guy. So basically it's this is what it is, but this is in a different shade. The thing with Huda Beauty blushes are they're very, very pigmented. They're very pigmented, guys. Like, it's crazy how pigmented these guys are. Hello. अच्छा वहाँ क्या चल रहा है साइड ट्रैक में? Beautiful, isn't it? Very gorgeous. I love it. I love Huda Beauty everything. You guys know that. Okay. सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है. All right. So अब हो ही रहा था. I'm gonna start putting on the things. सब कुछ ही लगा लेती हूँ because I have to step out anyways. जुनैद को जो है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है. Thank God I was waiting for this. I just couldn't stop waiting for this because he's so annoying. He was being so annoying. तो वो जो annoying lawyer होता है वो कर करके आके उसका सारा सामान and everything he just throws it out. He just throws it out.
रुके रुके, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, रुके रुके, ये आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। एनीवेज, तो वो ला के ना गूंज वूंज को सारा उनका सामान फिकवा देता है। देख लेना कौन सा शाहजहां, नहीं क्या, कौन सा जीजी का है और कौन सा इसका है। बहुत ही, आई एम सॉरी, लेकिन वो लॉयर जो है ना वो बहुत ही अनोइंग ही इज, आई मीन पता नहीं यार, आई डोंट नो। मैं तो जितने भी लॉयर से मिली हूँ लाइफ में, दे आर वेरी लाइक दे हैव अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी। लेकिन अब आप कहोगे कि वो तो भाई कॉमिक रिलीफ के लिए, लेकिन कॉमिक रिलीफ भी मतलब रिलीफ होना चाहिए ना, और आपको टॉर्चर नहीं मिलना चाहिए उस कॉमेडी से। So then I'm gonna use, guys, I'm gonna use this Makeup Forever HD, this one, the full cover, not the other one. What is it? Oh, it comes with a brush. I didn't know that. Very cool. Very cool. I didn't know that. So basically आप ट्रैवलिंग के लिए आराम से अगर आप जा रहे हो कहीं, या इवन अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो, अपने पर्स में इसको रख सकते हो, बिकॉज अगर ब्रश साथ में है ऐसे यू कैन जस्ट टू 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 टू। लेट्स सी कि क्या कवरेज है, किस तरह की कवरेज है। नाइस नाइस, ओके। कंसीलर इज वन थिंग गाइस दैट आई एम obsessed with. मुझे ना ये, खैर थोड़ा ब्लेंड करती हूँ तो पता चलता है, लेकिन इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, इट्स वेरी लाइट कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि जैसे हुदा ब्यूटी का जो कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ, दिस हुदा ब्यूटी कंसीलर, द फॉल फिल्टर, इट्स अ वेरी थिक, लाइक लगता है आप अपने प्लास्टर लगा रहे हैं अपने मुंह पे, बट दिस इज अ वेरी थिन कंसिस्टेंसी। एनीवेज, तो वो जो है साहब उसका सारा सामान वामान फेंकते हैं, थैंक गॉड। और फिर वो थोड़ा जीजी के ऊपर भी बॉर्डर लाइन फ्लर्टिंग करते हैं कि ओ कल आपकी हियरिंग है तो मैं आपको पिक कर लूँ, एंड जीजी जस्ट गिव्स हिम अ लुक लाइक व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा भाई, आप लोगों को पता ही है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी इसके रिव्यूज़ पोस्ट करती हूँ मुअम्मा के, तो मैंने ऑफकोर्स मिमिक्री की, सारा कुछ किया। उसके बाद कोई मुझे कह रहा है आपने ये बात की ही नहीं कि जीजी ने हियरिंग में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ही देनी थी ना, उसने गवाही उसके फेवर में तो नहीं देनी थी ऑफकोर्स उसने। मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिड ऑब्जर्वेशन इज दिस भाई। ऑफकोर्स वो ये तो उसके अगेंस्ट ही देगी ना कि हाँ इसी ने भाई मर्डर किया है, वो उसके फेवर में थोड़ी देगी कि नहीं नहीं मेरा हस्बैंड जो है ना वो बिल्कुल वो है, बेगुनाह है और उसने कुछ नहीं किया, ताकि वो आ जाए वापस, ताकि वो रिहा हो जाए और उसके सर पे बैठ जाए आके वापस। इतनी अजाबों से उसने ये मर्डर उसके सर पे डाला है, तो इसीलिए डाला है ना कि जिंदगी भर के लिए वो इन हो जाए। चलो भाई, यूज करते हैं हम अपना फैंटी ब्यूटी, व्हाट इज दिस, द सॉफ्ट मैट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। बहुत हल्का, ओके गाइस, मुझे ना ज़्यादा पुत पुत पसंद नहीं है, तो मैं बड़े हल्के हल्के लाइक लेयर्स यूज़ करती हूँ। ओके, तो फिर ये तमाशा हुआ, उसके बाद वो गए सब, एंड वो हमेशा के लिए अंदर हो गए। बहुत मज़ा आया। जिब्रान पे आई थिंक, आई मीन आई अंडरस्टैंड वो गुंडा कैरेक्टर दिखाया है, लेकिन आई विश बड़े बड़े गुंडों के तो यार जेल के अंदर से भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना, तो आई विश वो भी थोड़ा सा होता, थोड़ा सा कुछ ट्रैक होता कि उसके गुंडे अभी भी जीजी को परेशान करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। क्योंकि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतना बड़ा जो बदमाश टाइप था, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जो सारे जितने भी फ्लैशबैक्स हैं उसमें एक बड़ी बड़ी उसके पीछे पीछे ट्रक्स आते थे ब्लैक कलर के ना। पाकिस्तान में उसको कुछ कहते भी हैं, आई डोंट नो, कुछ उसके टर्म्स होते हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन और काफ़ी उसका जो है एक वो होता था, उसका पूरा ऑन्टराज साथ चलता था। तो वो कहाँ गया सारा ऑन्टराज? मतलब जो आपको पता ही है, जो आप क्रिमिनल्स होते हैं बड़े बड़े जेल में, उनके तो पूरे पूरे अंदर से ही नेटवर्क चल रहे होते हैं। उनको जीजी पे वो डिपेंडेंट है कि जीजी जो है मुझे लॉयर करा के देगी और जीजी मुझे जो है वो सब करा के देगी। आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो खैर एनीवेज, वो मज़ा आता मुझे देखने में, इंस्टेड ऑफ ये स्टूपिड भाभी टाबी और ये चलो इलेक्ट्रिशियन वाला ट्रैक तो आई एंजॉय, इलेक्ट्रिशियन पे भी आते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन जीजी की जो वो है ना टॉर्चर, वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। मतलब वो पूरी दुनिया को टॉर्चर करती हैं, तो उनको उनके ऊपर भी एक होना चाहिए था, राइट, कि उसके आदमी आ जाते हैं और उसको तंग करते हैं और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, लाइक आई डोंट नो, कुछ भी नहीं दिखाया है। सो खैर एनीवेज, द पर्पस ऑफ शो एंड टेल, बिकॉज दिस इज अ ईद हॉल,
वीडियो, तो मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देती हूँ. दिस इज़ द लॉन्कॉम ऑल ओवर कंसीलर. ला 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 ला. थोड़ा सा, बस थोड़ा सा. तो बस ये तमाशा हुआ, ठीक है. उसके बाद सज्जल के यहाँ जाते हैं कि सज्जल और नवीद की शादी होती है, वो उनको जीजी आपी बोलते हैं. आपके जीजी आपी, आप हमारी जीजी आपी हैं आज से. बस आप हम आपके भाई बहन हैं छोटे छोटे. जीजी आपी. तो वो जीजी आपी जो हैं वो इन्हीं डिवोर्स ना करा देंगे 2 दिन बाद. ऐसा भी हो सकता है भाई, जीजी आपी का कुछ पता नहीं है. जीजी आप ही आए, हमारे बराबर में खड़ी हो, हमारे साथ पिक्चर्स लेना. आए ना आए ना आए ना आए ना. तो जीजी आप ही जो है वो जाती हैं, उनके साथ पिक्चर्स देती हैं, सारा तमाशा होता है. एवरीथिंग हैपेंस. दिस फाउंडेशन इज सो फ्लॉलेस, आई कैन टेल यू. लाइक पता ही नहीं चल रहा कि मैंने फाउंडेशन लगाया हुआ है. यू नो कुछ फाउंडेशन होते हैं ना जिनकी क्रीसेस होती है, केकी शेकी होता है यार. दिस फाउंडेशन आई प्रॉब्ली ग्रैब अनदर बॉटल, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ये वाला फाउंडेशन, द Fenty one. I had heard great things about it and बिल्कुल भी मेरी स्किन पे, हालांकि मेरी स्किन ड्राई है, बिल्कुल भी मेरी स्किन पे ना वो नहीं लग रहा ड्राई और अनकम्फर्टेबल. हालांकि आई मीन ऑफ कोर्स मैंने अपनी स्किन को पहले प्रेप किया था. पहले मैंने बॉबी ब्राउन स्किन प्राइमर लगाया था और फिर मैंने वो लगाया था, बट स्टिल ये तो है. ओके. तो उसके बाद अब ये सीन होता है. अच्छा आसिया का थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है कि आसिया ना बहुत ही एक किक बैक मोड में आ गई हैं और वो जीजी को उन्होंने थोड़ा शटअप कॉल्स देना शुरू कर दिए, इन द सेंस के आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, आपने तो हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं, आप देख लेती कैमरा में. फिर जब वो आता है कौन आता है, मायरा जब आती है मिलने के लिए, यार वो कितना ज़बरदस्त सीन था. दैट वाज द बेस्ट सीन इन द एंटायर थिंग, इन द एंटायर सिचुएशन शो. कि मायरा आती है मिलने के लिए, क्योंकि जुनैद उसके पास गया होता है रोने के लिए कि मैं जीजी से मोहब्बत करता था, मैं जीजी से मोहब्बत की. तो रोने वाले आदमी ना मुझे इतने जहर लगते हैं. मुझे तुम मायरा के पास लेने क्या गए? तुमने उसको डिवोर्स कर दिया. तुम्हारे ऐसा तो नहीं कि सेपरेशन थी, राइट? तुमने डिवोर्स कर दिया था उसको, तो अब तुम क्या उसके पास रोने किस उससे गए हो, राइट? अच्छा, लेकिन आप लोग को पता ही है कि जीजी ने हमेशा से जो ग्रूम किया है लड़कियों को, वो ऐसे ग्रूम किया है कि मैं तुम लोग की साइड पे हूँ, राइट? ऐसे ग्रूम किया उन्होंने. वहाँ एट द सेम टाइम हस्बैंड के साथ अफेयर चलाया, बट लड़कियों को भी उन्होंने ऐसा ग्रूम किया हुआ है कि डूड मैं तो बहुत तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, यू नो दैट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन उन्होंने दोनों जगह की हुई है ना. तो वो तो बिलीव ही नहीं करती मायरा ऑफ कोर्स कि नहीं जीजी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है. तो वहाँ चली जाती है उनके घर पे. तो जब वो जाती है ना और जब वो बैठती है तो जीजी तो एक अलग ही हवाओं में होती हैं, क्योंकि नया शाहजहां आ गया उनके घर पे. तो वो आसिया से पूछती है, अरे तुमने मुझे बताया नहीं कि मायरा आई हुई है. तो क्या बोल पलट के ना वो तड़क से करके कुछ जवाब देती है आसिया उनको. आई एम फॉरगेटिंग कि वो क्या जवाब देती है, कि आपने ही तो कहा है कि आपने ही तो कहा है कि जब आप बिजी होती हैं तो आपको डिस्टर्ब ना किया जाए, समथिंग अलोंग द लाइंस. या आप तो अपने नए टेनेंट के साथ बिजी थी तो मैं आपको कैसे समथिंग ना. तो वो यूं हो जाती हैं जीजी के, ओ अब ये पलट के मुझे जवाब भी देने लगी है. लेकिन आसिया को जब पता चलेगा ना कि इसने ये पूरा लाइक यू नो इट कम्स अ फुल सर्कल ऑफ कोर्स, क्योंकि आसिया से भी ये बात छुपी तो नहीं रहेगी कि आशिक को फंसा के इसने मतलब तलाक हुई है आशिक की इससे, क्योंकि वो बेचारी आशिक को मिस तो बहुत ज़्यादा कर रही है, राइट? और आशिक को उस पर रेप अटेम्प्ट नहीं कर रहा था. ही वाज जस्ट पागल था वो, बेवकूफ़ था, तो पकड़ा गया. तो फिर मज़ा आएगा जब आसिया वाला ये खुलेगा. बट एनीवेज, तो वो मायरा जाती है और मायरा उसको बोलती है कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आप उनसे मोहब्बत करती थी और वो आपसे मोहब्बत करते हैं. उसने कहा मैंने तो आपके हस्बैंड से कभी मोहब्बत नहीं की. वो ही हर वक्त मरता रहता था मेरे पीछे कि इसको खुला दें, चले आप खुला लें और जो है ख़त्म करें अपना वो. मैंने तो आपके हस्बैंड से, आपको क्या मिला हमारा घर तोड़वा के? उसने कहा मैंने तो आपका घर नहीं तोड़वाया, मैंने तो बस
आपके ऊपर एक्चुअली फेवर किया। गैस लाइटिंग करने में तो आपको पता है जीजी जो है वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। मैंने तो एक्चुअली आपके ऊपर फेवर किया है कि आपका लूजर हस्बैंड जो हर वक्त मेरे ऊपर लाइनें मारता रहता था, क्योंकि इतनी अच्छी उसको प्यारी बीवी मिली थी। नाउ वी आर गोना यूज द ब्लश, ओके। लेकिन वो जो है गधा हर वक्त, यू नो, ही ऑलवेज यूज्ड टू हैव एन आई आउट फॉर मी। मैं तो उसको लाइन पे लाना चाह रही थी। मैंने तो तुम्हें एक्चुअली फेवर किया। कभी खुश नहीं रह पाएगी, अब कभी खुश नहीं रह पाएगी। दफा हो जाओ यहाँ से जी, दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो यहाँ पे जीजी आके ना थोड़े से उनके पैर लड़खड़ा गए, क्योंकि आप देखो कि जब ज़ारा और ज़ीशान की इन्होंने डिवोर्स कराई थी तो वो राइटर ने 10 एपिसोड्स तक खींचा था उस मामले को, क्योंकि ऑफकोर्स ड्रामा भी नहीं आया था और राइटर हमें शायद अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे थे कि ये अपने रिलेशनशिप्स जो हैं वो संभाल के रखती हैं। ऐसा नहीं है भाई, हस्बैंड के सामने पोल खुल जाती है ना, लेकिन वाइफ के साथ तो वो बिल्कुल ही। तो अगर अभी ये नया शाहजहां नहीं आया होता और तो जीजी आई डोंट थिंक अपने आप को एक्सपोज करती मायरा के सामने। लेकिन अभी तो नया शाहजहां आ गया, so she doesn't give a shit about this girl. She's like whatever, fuck off man, I don't care. आज मेकअप बहुत ही ना अच्छा ब्लेंड हो रहा है और बहुत ही आप देखो कि सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्टार्क नहीं लग रही है ऐसे करके। आई नो कैमरा पे यार इतना अच्छा नहीं नजर आता, बट मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो तो इसको शट अप कॉल दे देती है कि जाओ जाओ चलो अपना काम करो, आगे बढ़ो, मेरा दिमाग नहीं खराब करो, लाइक डोंट वेस्ट माई टाइम, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक आई फील लाइक दैट कि भाई अब नया शाहजहां आ गया तो इसको बस ये है कि अदरवाइज वो तो अपना ऐसा मास्क पहन के रखती है ना सबके सामने कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, मुझे कॉल करती रहना, मुझे कॉल करके बताती रहना, अपना ख्याल रखना। तो जब जीजी ऐसे खुल के उसके सामने आ गई, मायरा के सामने, मैंने कहा ओह नाइस, वेरी नाइस, ये क्या हो रहा है, बिकॉज इट्स न्यू राइट। अभी तक वो ऐसे खुल के उसके सामने तो नहीं आई ज़ारा के सामने, जैसे वो खुल के इसके सामने आ चुकी हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्लांटेड है, ये कपल प्लांटेड है, ज़ीशान ने प्लांट किया है या जुनैद ने प्लांट किया है, तो जो भी है पता चल जाएगा प्लांटेड है कि नहीं है। क्योंकि तहकीकात तो वो करवाएंगी ना, या असल में इसका नाम शाहजहां है कि नहीं। बिकॉज अगर प्लांटेड है, उनको पता है कि अच्छा ये किसी शाहजहां नाम के बंदे से प्यार श्यार करती थी, तो हो सकता है इस बंदे ने ऐसे ही अपना फेक नेम शाहजहां रख लिया, यू नो, जस्ट टू kind of ring a bell in her head. ऐसे भी तो हो सकता है ना, so we don't know. Anyways, couple लग तो शेडी रहा है, that's true. There is something up with this couple. ये इतने सीधे नहीं है। अच्छा, इनके पास ना हमेशा सीधे लोग आ जाते हैं, वो भी पता नहीं कैसे। इतने सीधे लोग होते नहीं है भाई लाइफ में, एक से एक टेढ़े टेढ़े लोग होते हैं। बट जीजी के हमेशा पास जो आता है शेयर, वो बहुत ही सीधे तरीन लोगों का आता है। ला 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 ला। सज्जल पे आते हैं। सज्जल की शादी हो गई, नवीद की शादी हो गई ना इससे, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी हो गई। शादी के बाद वो भाभी उसे कॉल कर रही हैं, लिटरली रूम से इतना क्लोज है वो, मतलब ये उसका रूम है और ये वो खड़ा हुआ है। हाँ बस मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करने के बारे में, मतलब मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ मैं ये, और वो अंदर सुन ही नहीं रही। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। हालांकि थोड़ा सा दिखाया कि सज्जल को शक हो गया है कि यार ये क्या, मतलब किसके फ़ोन आ रहा है। ओ मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आ रहा है। आई थिंक, ये मेरी थ्योरी है यार, मुझे नहीं पता, कि ये पकड़ेगी इसको रेड हैंडेड इसके साथ, भाभी के साथ, एंड ही वुडंट बी एबल टू एक्सप्लेन कि बेसिकली क्या है वो। ये तो नहीं कह सकता ना, ओ जीजी ने कहा है कि इसकी तलाक कराओ एंड आई एम जस्ट प्लेइंग लाइक ये मेरा साइड जॉब है जहाँ पे मैं लोगों की उनकी हेल्प करता हूँ डिवोर्सेस कराने में। ही कैन से दैट टू दिस गर्ल, ऑफ कोर्स ही कैन से दैट टू हिज वाइफ। तो वो इसे छोड़ के चली जाएगी, तो इन दोनों को भी मुझे लग रहा है डिवोर्स हो जाएगी आजकल में। इनका भी सीन जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड देन दिस गाय इज गोना बी अगेंस्ट जीजी बिकॉज ही विल बी लाइक व्हाट द हेल, तुम्हारी वजह से मेरी डिवोर्स हो गई, यू नो। बिकॉज और जीजी का तो अपना डाउनफॉल शुरू होने वाला है, बिकॉज ये वाला जो शाहजहां है ये तो डाउनफॉल के लिए आया है ना, एवरीबडी नोज दैट। तो दैट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ से इसकी तो डिवोर्स होने वाली है ना। जो भाभी, आई एम सॉरी, मैं भाभी के सारे सीन्स आगे कर देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द भाभी सीन्स एट ऑल। यू कैन पे मी टू वॉच देयर सीन्स, लाइक इट्स सो अनोइंग, इट्स सो अनोइंग, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग। डेट पे चली गई आप उस अजीब,
मतलब इतनी भी कोई पागल लेडी नहीं होती कि आपसे मतलब 1/3 एज का बंदा आपके ऊपर लाइन मारा है और आप उसके प्यार में, ऐसा नहीं होता भाई, कम ऑन। आई मीन हाँ ऑफ कोर्स आप कहोगे भाई ड्रामा है कि ये तो ड्रामा है, हाँ लेकिन ड्रामों में भी मतलब थोड़ा सा तो उसे शक होना चाहिए था इसके ऊपर कि कौन है, कहाँ से आ गया अचानक रैंडम। मुझे एक बंदा फोन करेगा, मुझसे कहेगा मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी कर रहा है और मैं अपने हस्बैंड को ये तलाक दे दूं। या तो मैं बहुत ही भोली भाली कैरेक्टर हूं ना, वैसा भी नहीं है, भाभी तो बहुत चंट टाइप है, तो वो कैसे ऐसे किसी की भी बातों में आके। तो वो जो है इसको अपने हस्बैंड को टाटा बाय बाय करने वाली है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये भाभी से शादी करेगा। इट्स सो फनी, आई कैंट। तन्हा अकेले हूँ। तो खैर, चलो भाई, अब बस कुछ ज़्यादा बच नहीं गया, कुछ लास्ट के एपिसोड्स है। मुझे लग रहा था ये तो रमदान में ख़त्म हो जाएगा, बट अपियरली नॉट, अभी तो हैं इसकी काफ़ी एपिसोड्स है ना, 5-6 एपिसोड्स हैं। रमदान ड्रामे तो मैं फॉलो नहीं कर रही बिल्कुल भी, हालांकि इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा आप क्यों नहीं देख रही हैं, आप क्यों नहीं देख रही, डूड आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम इन रमदान के मैं एक्स्ट्रा अपने ऊपर बोझ ले लूँ। वाई आई एम नॉट गोना डू दैट। जो है बस, जो चल रहा है, कफील चल रहा है, मामा चल रहा है, इनफ है मेरे लिए, तो बहुत इनफ है। मेरी ज़िंदगी है तो मतलब मैं कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थी देखने में, तो वाई शुड आई वॉच इट। अच्छा मैं जल्दी से ना आप लोग को ये ग्लॉस भी दिखा देती हूँ यूज़ करके, और शुड आई यूज़ दिस मस्कारा बिकॉज दिस इज अ वाटरप्रूफ। होल्ड ऑन, लेट मी शो यू गाइस दिस बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो। लेट मी शो यू। मैंने इतनी सारी एपिसोड्स में सिर्फ शाहजहां की साइड ली है, वो जो ओजी शाहजहां था ना, उसकी मैंने साइड ली बिकॉज आई डिडंट नो कि ये सारा गेम हुआ है। बट अच्छा ही है फिर तो जीजी शुड नेवर गो बैक टू हिम एवर। खैर इससे वो तो खुला ले लेगी, जो इसका करंट हस्बैंड है उससे तो ऑफकोर्स वो खुला ले ही लेगी, बट वो देगा नहीं बिकॉज वो कहेगा कि भाई क्या सीन है, अब तो तुम आज़ाद हो जाओगी। So what it looks like. ला 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 ला। अच्छा मेरा यार ये होता है कि आई ऑलवेज लाइक टू लेयर माई मस्कारास, सो दैट्स जस्ट हाउ आई यूज माई मस्कारास। एक फेंटी, आई रियली लाइक फेंटी मस्कारास, आई एंजॉय देम अ लॉट। So this is what it looks like after both these mascaras. Na 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 na. Na 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 na. Okay, so I'm gonna finish this and we'll close this video. I'm gonna quickly just do a little bit of powder on my face. Where's my powder brush? Where's my powder brush? Where's my powder brush? Pata nahi, I don't know where my powder brush is. Okay, I'm just gonna use this. This is the Charlotte Tilbury thing. Because I like my makeup very blended. मुझे अच्छा नहीं लगता. A lot of people do like it, you know, उनके blush बहुत ज़्यादा stark आ रहा हो या ये हो रहा हो. I don't like it like that. If you like it like that, go ahead, do it. Okay, so chalo. Now let's use the gloss that we got. The Lancome. What was the name? The Lancome. Forgetting. It just says Lancome. Okay. La 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 la. It smells so good. It smells like chocolate, vanilla, caramel, salted brown sugar. Ah! Okay.
this is what it looks like. Okay, I'm gonna set my makeup and we're done. Highlighter लगाने का mood नहीं हो रहा. Should I? थोड़ा सा लगा लूँ क्या? So this is the same Say glow that we were talking about earlier. वो जो मुझसे खुला नहीं ना, it's the same thing. I mean, not the same thing, the same brand. वो मुझसे खुला नहीं है. I don't know how to open it. अगर आप लोग कहोगे तो मैं और भी ट्यूटोरियल्स आप लोग के लिए ईद का गेट रेडी विद मी ट्यूटोरियल बना दूंगी इफ़ यू गाइस वांट इट, क्योंकि मैं बहुत ही लेस मेकअप वाले ट्यूटोरियल्स बनाती हूँ. यूजुअली मैं सिर्फ ऐसी बस we just talk without just so if you guys want I can do those for you. La 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 la. Blush blend हो गया मेरा, so I'm gonna fix that. शायद ईद से पहले एक बार और मेरा सेफोरा का चक्कर लगे शायद, बिकॉज मुझे एक चीज़ पे मेरी नज़र है, तो वो नज़र जब तक रहेगी तो प्रॉब्लम रहेगी. ये प्रॉब्लम है बस. और फिर जब वो चीज़ आ जाएगी तो भले वो कभी यूज़ ना हो, लेकिन होनी चाहिए मेरे पास. आई थिंक ये सारी लड़कियों का प्रॉब्लम है कि एक बार वो चीज़ आ गई तो वो शायद मेरे वैनिटी पे पड़ी रहे 100 साल तक. आई डोंट केयर बट आई नीड इट. लेकिन अब ईद आ रही है तो कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाएगी. वेरी नाइस. इतना आई लव हुदा ब्यूटी बिकॉज यू लिटरली आई एम टैपिंग लाइटली और वो खुद ब खुद ही ब्लेंड हो रहा है. लाइक आई लव दिस इज व्हाई आई लव हुदा ब्यूटी. Honestly, everything that I have put on my face today that I used, that I got right now and I used everything I like. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको बोलूँगी सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें I'm happy with. And yeah, so that's that. And I will see you in the next Moama review. कफील का भी मैंने review किया, लेकिन I don't know अगर कफील का review लोगों को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा. But I will see you guys